شان اور شاندار تبریز میں خوش آمدید آقا. آپ کی تلوار کا سایہ چار سو پھیلا ہوا ہے. دشمنوں نے آپ کی طاقت کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں. طہماسپ قازوین کی جانب فرار ہو چکا ہے اور تم لوگ ابھی تک یہیں ہو. کیوں اس کے اختیار کردہ راستے پر اس کا تعاقب نہیں کیا؟ حالات ہماری توقعات کے برعکس تھے آقا. مبہم باتیں نہ کرو رستم. جو بھی ہوا وہ بتاؤ. ترکمان کہاں چلے گئے؟ القاس نے ہم سے کیا ہوا وعدہ پورا نہیں کیا. ترکمان صوبیدار اپنے وعدے سے پھر گئے آقا. طہماسپ کی وجہ سے. فاطمہ سلطان سے نکاح کی خبر ان تک بھی پہنچ چکی تھی. دیار عجم میں کوئی بھی اس سے بے خبر نہیں رہا. اس کے علاوہ بھاری جرمانہ ادا کرنے کا حکم صادر کر دیا گیا ہے. اس کا مطلب القاس مرزا ان کی نظروں سے گر گیا ہے. دیار عجم میں اس کا اعتبار ختم ہو گیا. درست ہے شہزادے. اب اسے شاہ کے طور پر وہ لوگ دیکھنا بھی نہیں چاہتے. کیا ہوا رستم پاشا؟ سلطان سلیمان نے میرے بارے میں کچھ کہا کیا؟ حالات بہت زیادہ اچھے نہیں ہیں القاس مرزا، اور آقا نے فوراً آپ کو اپنے لشکر سے علیحدہ کرنے کا حکم صادر کر دیا ہے. آپ نے کیوں نہیں روکا؟ میرے اختیارات کی حدود ہیں، وہ بہت زیادہ وسیع نہیں ہیں القاس مرزا. آقا کے کسی بھی فیصلے کو میں قطعاً نہیں بدل سکتا. تو پھر سلطان سلیمان اس حقیقت کو کہ ان کے پسر کو کس نے مارنے کی کوشش کی یہ جان لیں گے. اگر سب کچھ بتا بھی دیں گے تو آپ کو کچھ حاصل نہیں ہو سکے گا. دونوں کے ہی سر قلم ہو جائیں گے. میرے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں ویسے بھی مر چکا ہوں. یہاں سے نکلتے ہی مجھے چڑیا کی طرح مار دیں گے. میں اس کی اجازت نہیں دوں گا. میرا حکم ماننے والے صوبیداروں کے حوالے کر دوں گا تمہیں. کچھ عرصے وہیں چھپے رہنا ہوگا. اس کے بعد کرم جانے کا بندوبست کرا دوں گا. اگر راستے میں کچھ ہو گیا تو؟ نہیں ہوگا. میرا نائب محمود آغا آپ کے ساتھ جائے گا. اس کے علاوہ محافظ بھی دوں گا. معمار سنان آغا نے خبر بھجوا دی ہے ملکہ. خدا ان پر رحمت فرمائے. مرحوم شہزادے محمد کی عظیم یادگار کے طور پر تعمیر ہونے والی مسجد کو آقا کے حکم کے مطابق جلد ہی پائے تکمیل تک پہنچایا جائے گا. میری اولاد کی موت کے بعد کتنی بہاریں گزر گئی عفیفہ خاتون، مجھے تو اب یاد بھی نہیں ہے. مسجد مکمل ہو رہی ہے، مطلب برسی تک مکمل ہو جائے گی کیا؟ میرا نہیں خیال ملکہ، کیونکہ پہلی نماز کے لیے آقا کا انتظار کیا جائے گا. فلاحی دارے کے بارے میں بتائیں، اس کی تعمیر کہاں تک پہنچی؟ آپ فکر نہ کیجیے ملکہ، میں بذات خود توجہ دے رہی ہوں. اعلیٰ. پہلے وہاں قرآن خوانی کروانی ہوگی اور پھر ہم مزار پر جائیں گے. آقا کے لیے بھی ہم سب دعائیں مانگیں گے عفیفہ خاتون. صحیح سلامت فتح یاب ہو کر واپس آئیں. آمین آمین. اگلے ہفتے جمعے کے روز ملکہ شہزادے محمد کے مزار پر فاتحہ خوانی کے لیے جائیں گی، لیکن اس سے پہلے فلاحی ادارے میں قرآن خوانی ہوگی. سب احتیاطی تدابیر کر لو. خیال رکھنا کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہ ہو. آپ فکر نہ کریں عفیفہ خاتون، کوئی پریشانی نہیں ہوگی. خرم سلطان اگلے ہفتے جمعے کے روز فلاحی ادارے میں قرآن خوانی کروائیں گی، اس کے بعد مزار پہ جائیں گی.
आला आला, आखिरकार हुर्रम सुल्तान से जान छुड़ाने का वक्त आ गया है। अगर हम इसमें कामयाब हो सके दाऊद, तो सिर्फ शहजादे मुस्तफा की ही नहीं, पूरी दुनिया की किस्मत बदल जाएगी। इंशाल्लाह रईस। रुस्तम पाशा के साथ मिलकर सैकड़ों मासूम लोगों का खून बहाया गया है। हमें उसका भी अभी हिसाब चुकाना है, और वो हम जरूर चुकाएंगे। रूह मुजर्रद है, ज़मान और मकान से अबदी तौर पर आजाद, मगर वो इंसान के बदन में कैद है। इंसान का बदन रूह का कफस है, जिससे आजाद होने के लिए रूह कोशिश करती रहती है। ऐ सुलेमान, वजूद पर्दे की मानंद है। मौत की आमद के वक्त अल्लाह तबारक ताला के हुक्म से वजूद का ये पर्दा हमेशा के लिए उठ जाता है। वालिदा, इतनी उजलत क्यों कर रही हैं आप? अभी काफी वक्त है। मैं पहले फलाही इदारे में कुरान खानी में शिरकत करूंगी। क्या मेहरमा और जहांगीर भी जाएंगे आपके साथ? नहीं। आपको कैसे मालूम हुआ मैं कौन हूं? मैंने पहचान लिया तुम्हें। दस्तो चेहरे पर लगे खून की खुशबू सूंघ ली मैंने। आप किस खून की बात कर रहे हैं? उस खून की बू तुम्हारा दामन जला रही है। तुम्हारी नफरत और गुस्से का बाइस भी यही है। तुम समझते हो ठीक हो जाएगा, भूल है तुम्हारी। जब सब ठीक होने लगता है तो एक शदीद गम तुम्हें अचानक दिलगीर कर देता है। तुम्हारा जख्म तुमको अपनी याद दिलाता रहता है। इसका क्या मतलब है साहब? कैसा जख्म है ये? रूह का जख्म है ये। अरसा पहले तुम्हारे अंदर बोया जाने वाला एक बीज, इसे दफन कर दिया, मिटा दिया, खत्म कर दिया ये समझते, लेकिन दरअसल हर दिन सांस लेने वाला ये एक जहरीला पौधा है। हर लम्हा बढ़ रहा है जो तुम्हारी रूह पर मोहित होता जा रहा है, ताकि तुम्हारे चाहने वालों को अपनी लपेट में ले ले।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह तो जल्द से जल्द हफीफा खातून को सेहत अता फरमा। या अल्लाह इनको मुकम्मल शिफायाबी अता फरमा मेरे मौला, इन्हें जल्द होश आ जाए। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। शुक्र है अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। सुंबुल, यही हूँ अफीफा खातून, आप हुक्म करें। हुरम सुल्तान, अरसा पहले तुम्हारे अंदर बोया जाने वाला एक बीज, इसे दफन कर दिया, मिटा दिया, खत्म कर दिया ये समझते, लेकिन दरअसल हर दिन सांस लेने वाला ये एक जहरीला पौधा है। हर लम्हा बढ़ रहा है जो तुम्हारी रूह पर मुहीत होता जा रहा है, ताकि तुम्हारे चाहने वालों को अपनी लपेट में। वालिदा, शुक्र है अल्लाह ने आपको हम सबके लिए बख्श दिया। क्या हुआ? याद नहीं क्या आपको? सर पर अचानक पत्थर बरसने लगे थे, उसके बाद याद नहीं मुझे कुछ। आप बेहोश हो गई थी वालिदा। ऐसे हादसे में खराश लगे बगैर बच जाना एक मोजिज़ा है। हादसा? हादसा है वालिदा, एक भयानक हादसा। आप जहां से गुजर रही थी वहां ऊपर बंधे हुए पत्थरों की अचानक रस्सी टूट गई। काश कि मैं आपके साथ होता। अफीफा खातून कहाँ है? फारिहा कैसी है? शिफा खाने में है। फारिहा काफी जख्मी हुई है, लेकिन हकीमों ने कहा है वो ठीक हो जाएगी। अफीफा खातून, या अल्लाह तो हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह सब मुश्किलों को डाल दे। या अल्लाह सारी बलाओं को डाल दे मेरे अल्लाह। अफीफा खातून, अफीफा खातून, हाँ मलिका। ठीक हो जाएंगी आप, फिक्रमंद ना हो। हकीम कह रहे हैं आप ठीक हो जाएंगी। आपके बेटे याह्या साहब को खबर भेज दी है, बुरसा गए हुए हैं, लेकिन आ जाएंगे। उनसे मिलेंगी आप। बस यहीं तक था मलिका। रवानगी का वक्त आ पहुंचा। अल्लाह न करे, आप हमारे लिए बेशकीमत हैं। जैसे आका आपको अपनी वालिदा के बराबर समझते हैं और एहतराम करते हैं, मेरे लिए भी ऐसा ही है। महल में जब आप आई थी वो वक्त याद है मुझे।
किसी भी तरह हमारी सुलह नहीं हो रही थी। दुश्वार रास्ते से गुजरे हम, एक दूसरे को बर्दाश्त ना किया, गुस्सा किया, नफरत की। हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं मलिका, मेरी क्या मजाल। और बिलाखिर एक दूसरे को समझ लिया। दरअसल हमने इस कठिन रास्ते से बहुत कुछ सीखा और हम दोनों ने जो कुछ भी किया वो सब आका की खुशी और सुकून को हासिल करने की खातिर किया। अफीफा खातून, अगर कभी मैंने नादानिस्ती में आपकी हक तलफी की है या कभी ना चाहते हुए भी दिल दुखाया है आपका, तो खुदा के लिए मेरी वो खता माफ कर दीजिए। मैं माफी चाहती हूँ। हरगिज़ नहीं मलिका, मेरी क्या मजाल। मैं आपसे राजी हूँ मलिका, मेरा रब भी राजी होगा आपसे। कतन मैं नाराज नहीं हूँ आपसे। अफीफा खान, हकीम को बुलाएं। अफीफा खातून। मलिका, आपको कुछ बताना है मलिका, बताना है। क्या बताना चाहती हैं? बीमार। कौन बीमार है? आका बीमार है, बीमार है। सूरत हाल अच्छी नहीं। आपकी अमानत है। है खामोशी मेरी बुनियाद, तुम हो। तुम मेरे चाहने वालों और मेरे दरमियान एक पर्दा हो। इस गंभीर खामोशी के सबब बाज लोग उम्मीद रखते हैं और बाज खौफ ज़दा हो जाते हैं। अगर इंसान अपनी किस्मत पर खामोशी इख्तियार कर ले तो, शिकायत ना करे तो, कोई उम्मीद और खौफ उसके दिल में जगह ना पाएगा। हम अपनी बदनसीबियों, महरूमियों और बर्बादियों का नौहा ना करें तो अल्लाह भी हम पर रहम करेगा। मैं एक आईना हूं, एक आईना हूं मैं, ऐसा शख्स नहीं जो चर्ब ज़बान हो। मैं हमेशा खामोश रहता हूं, इतना खामोश कि कोई मेरे दिल का दर्द महसूस नहीं कर सकता। अगर तुम्हारी आंखें वाकई देख सकें और तुम्हारी समात वाकई सुन सके तो फिर तुम मेरी सूरत हाल को समझ लोगे। मैं महताब की तरह जमीन पर गर्दिश करता हूं। मैं गर्दिश करता हूं क्योंकि मैं जमीन ज़ादा हूं। मैं जमीन का असली रंग हूं। कर जा मुझे खाक से पैदा किया गया,
मगर मेरे पास अकीदा है, इसीलिए मेरी गर्दिश महताब जैसी है। ये निहायत महसूर कुन है। ए खामोशी, मेरी बुनियाद तुम हो, मेरी सूरत तुम हो। ए दाना और बीना, मुझे बताओ, कलाम करो ताकि मैं हकीकत हाल बयान करने की दुआ कर सकूं। क्योंकि हर सहर जब दुआ मांगने का वक्त आता है, मैं खूबसूरत हो जाती हूँ, मैं मसरूर हो जाती हूँ, खुश खुर्रम। मैं अपने सजदे कभी तर्क नहीं करूंगी, खुद को आपसे दूर ना करूंगी। बादशाह जो चाहे इकराम अता करे, जो चाहे मुझे इनायत करे, उसके निस्फ हिस्से का निस्फ मेरा हिस्सा है। सच्चाई का प्याला और अब्दियत मुझे अपने मोहतरम बादशाह की जानिब से इनायत की गई है। मैं कनीज की हैसियत से इस प्याले को घूट घूट पीती हूँ। हत्ता कि चिहार से सूरज की रोशन किरणें फैल जाती हैं, वो उन्हें भी रोशनी अता करता है जो इससे महरूम है। मेरा गला खुश्क हो रहा है, मैं बात नहीं कर सकती, खामोश हूं मैं। ए दाना और बीना, तेरे कहे हुए खुशनुमा अल्फाज याद आते हैं। ए मेरी जान के बादशाह, मेरी मुसरत के अंजुम, मेरे वजूद का सबब आप मुझे बताएं, क्योंकि मैं आपकी आवाज सुनने के लिए तरस रही हूँ और आप यहाँ से बहुत दूर हैं। दरमियान में पहाड़ और दरिया है। मैं मजबूर और बेबस हूँ, बेख्तियार हूँ।
मेरे पास शहजादे सलीम को भेजो। वालिदा, आप मुझसे मिलना चाहती हैं? आओ मेरे पिसर, करीब आओ। अल्लाह आपको सलामत रखे वालिदा। वो हादसा मेरे लिए निहायत रंज का बाइस है। आप जाकर सो जाएं, जरा आराम कर लें। ये वक्त सोने का नहीं है मेरे बेटे, बल्कि आंख झपके बगैर होशियार खड़े रहने का है। मुझसे मेरी तरजीह पूछी थी ना तुमने? पूछी थी ना? तख्त के रास्ते पर मैं किसकी हिमायत करूंगी, तुम्हारी या विरासत की, ये सोचने के लिए कहा था ना। मैंने सोच लिया है और एक फैसला किया है। आज के बाद मेरे बेटे तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे हमरा मैं रहूंगी। वालिदा, तहमास्प की कोई खबर है क्या? उलमा पाशा और करामत पाशा उसका ताकुब करने में लगे हैं, लेकिन अभी तक उसकी कोई खबर नहीं मिली है हमें। सिपाहियों की सूरत हाल क्या है फरत आगा? हम आपके हुक्म के मुंतजर हैं आका। मैं ये नहीं पूछ रहा। भागने वालों, शिकायत करने वालों, अपनी हद को भूलने वालों, बदनज़मी फैलाने वालों को सजा दी क्या? मालूम ही है, सफर के तवील होने से सिपाहियों पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है, लेकिन अपनी हद भूलने वालों को सबक सिखाया जा रहा है। सबक सिखाना काफी नहीं। एक मामूली सी खता करने वाले का सर कलम कर दिया जाएगा। मैं इस सरजमी पर आया हूँ तमाश नामी इस गाफिल की जान लेने आया हूँ। यकीनी फतह हासिल किए बगैर नहीं जाऊंगा और कोई रास्ता नहीं। वो जहां भी छुपा है उसे निकाल कर बाहर लाऊंगा। मैं सुल्तान सुलेमान खान। बाबा, बाबा, हकीम को बुलाए फौरन। बाबा, बाबा।
वालिदा, वालिदा क्या हो गया? बाबा की वापसी पर आपको हमेशा खुशी होती थी, वो खुशी आपकी आंखों से झलकती थी, जबकि इस बार आपकी आंखों में उदासी है, आंसू भरे हैं। खुशी के आंसू हैं ये मेहरबा, मालूम ही है इस मर्तबा सफर बहुत तवील था। सुल्तान सुलेमान खान तशरीफ ला रहे हैं। आका, शुक्र है सफर से भी आप फतेहाब लौटे। खुश आमदीद, हमें खुशियां बहम पहुंचाई। शुक्रिया फातिमा, आप सब जा सकते हैं। गुलफाम, मुझे लगता है आका के साथ जरूर कोई मसला हुआ है। इंशाअल्लाह खैरियत होगी। आका की हालत ठीक नहीं है वालिदा, यकीनन कुछ पेश आया है। लाजमन सफर से थक गए होंगे, क्यों है ना वालिदा? आप सब अपने कमरों में जाइए। वालिदा, रियासत, मेरे बहादुर शहजादे। इजाजत दीजिए, मैं हकीम को बुला लेता हूँ आका। अभी नहीं। आका के साथ कुछ हुआ है, हमें दस्तपोसी की भी इजाजत नहीं दी उन्होंने। तवील रास्ता तय करके आए हैं मेहरमा, सबकी हालत ऐसी ही है। मैं आप लोगों से कह चुका हूँ, वो थक गए शायद, फिलहाल आका को आराम करने दें। रुस्तम पाशा, सफर कैसा गुजरा बियाजत? मैंने सुना है तुम अपने खेमे से बाहर ही नहीं निकले। तुमने गलत सुना है सलीम। वान के मुहासरे में तेग बदस्त होकर मैं सबसे अगली सफ में शामिल था, तुम्हारी तरह महल में बंद होकर नहीं रहा। सल्तनत तेग से नहीं अकल से चलाई जाती है, तुम कहते थे। आका की गैर मौजूदगी में मैंने भी यही किया। एक दूसरे की खैरियत मालूम करने के बजाय ऐसे आपस में झगड़ा करोगे क्या?
حکیم کو دکھا دیجیے آقا، ایسی غفلت مناسب نہیں. تم جا سکتے ہو. کم از کم میں آپ کو پلنگ تک. تم سے کہا جا سکتے ہو، کسی کا سہارا نہیں چاہیے. آپ کا جو حکم میرے آقا. तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? रुस्तम पाशा, मुझे हकीकत बताओ. मलिका, आप यूं ही परेशान हो रही हैं. शहजादे ने जो आपको बताया. वो बीमार है, मैं जानती हूं. जानती हैं? कैसे? क्या हुआ है? तकलीफ क्या है ये बताओ. दरअसल आका लश्करगाह में सिपा से खिताब करते हुए जमीन पर गिर गए थे. हमें उस वक्त अंदाजा हुआ कि वो बीमार है. तमाम रास्ते बुखार में चलते रहे. बीमारी क्या है उन्हें? उनके पांव पर जख्म और सूजन मौजूद है. हकीमों ने मुआयना करके बताया है कि आंवले पड़ गए हैं. और सिर्फ यही नहीं, उनका बुखार किसी सूरत कम नहीं हो पा रहा. कैसा बुखार? हुक्मा समझ नहीं सके कि क्या बीमारी है. इस बीमारी के बारे में हमारे अलावा किसी को नहीं मालूम और होना भी नहीं चाहिए. उस वक्त तक हमें हर एहतियात को बरूए कार लाना होगा और इसके लिए तदबीर करनी होगी. कैसी तदबीर? क्या बात कर रहे हो तुम? ये कैसी एहतियात? खुदा न खास्ता अगर अल्लाह के हुक्म से वो जहां से रुखसत हो गए तो शहजादे ब्याजत की पुरअमन तख्तनशीनी की खातिर. तुम अपने होश में तो हो? ये क्या बात कर रहे हो तुम रुस्तम पाशा? आका को मौत से पहले ही क्या खाक में दफन कर दोगे? माजरत मलिका, लेकिन ये बीमारी संगीन है. मौत का खतरा भी हो सकता है. एक वजीर आजम की हैसियत से मुझे हर बात सोचने की जरूरत है. मत सोचो, निकाल दो अपने दिमाग से ये फजूल ख्याल, क्योंकि आका बहुत जल्द बेहतर हो जाएंगे. इस बीमारी का इलाज मैं ढूंढ लूंगी. जहन्नम की तह में भी अगर मुझे ढूंढना पड़ा इसका इलाज तो मैं ढूंढ निकालूंगी उसे हर हाल में. शहजादी, सफर पर जाने से पहले तुम्हें एक हुक्म दिया था. अलकास मिर्जा वो सफर से कतन वापस नहीं आएगा ये कहा था. अलकास मिर्जा कहाँ है? उसके साथ क्या हुआ? सफर के दौरान हूरजहां की जानिब से कोई खबर मिली क्या? खुदाया में मेरी मुंतजिर है. उसकी खता को मैं दरगुजर नहीं कर पा रहा. चाहूं भी तो उसे माफ नहीं कर सकता. बिल्कुल जैसे उसे मैं छोड़ नहीं सकता.
ہر جرم کی ایک سزا ہوتی ہے اور ہر سزا کا ایک اختتام ہوتا ہے بیازت. اور جہاں نے سرزد ہونے والی خطا کی سزا جھیل لی ہے، اب خود کو اور اسے مزید اذیت نہ دو. مزید کچھ مدت تک ہم علیحدہ ہی رہیں گے. تم کیوں اپنی ریاست جانے کے بجائے یہاں آ گئے؟ بابا نے ساتھ آنے کے لیے کہا تھا. آؤ. میرے شہزادوں، امید ہے میں نامناسب موقع پر نہیں آئی ہوں گی. ایسا کیسے ہو سکتا ہے شہزادی؟ فرمائیے. اپنے مستقبل کے ساتھی القاس مرزا کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں. سفر سے آپ کے ہمراہ واپس آ کر ہمارا نکاح ہونے والا تھا، سب جانتے ہیں. القاس مرزا اپنے وعدے کے مطابق ترکمان اور اجمی لشکر مہیا نہیں کر سکا تھا شہزادی. اجمی سلطنت کے مالک ترکمان جسے چاہیں گے وہی شاہ بنے گا. سفر کے دوران اس نے ہمیں کافی مشکلات سے دوچار کیا، اس وجہ سے آقا نے اسے واپس لانا مناسب نہیں جانا. یہ تم کیا کہہ رہے ہو بیازت؟ کہاں چلا گیا وہ پھر؟ معلومات نہیں شہزادی. رستم پاشا سے سوال کیجیے، وہ آپ کو اس مسئلے کی تفصیلات سے آگاہ کر دیں گے. سامنے سے ہٹ جاؤ لقمان. معذرت ملیکا، آقا فی الحال آرام فرما رہے ہیں، قطعاً اجازت نہیں جانے کی. اچھی طرح جانتی ہوں آقا کی صورتحال. سفر کے دوران جو کچھ بھی پیش آیا میں جانتی ہوں. اب ہٹ جاؤ میرے سامنے سے، ورنہ سر قلم کروا دوں گی تمہارا. تم اندر کیسے آ گئی؟ لقمان؟ صرف لقمان نہیں، سارا زمانہ بھی اگر چاہتا تو مجھے نہیں روک پاتا. میں سب کو ہٹا کر آ جاتی. سلیمان، میری خوشی، میرا نصیب، میری موجودگی کا سبب، میری جان، میرے دل کے بادشاہ، آپ کی حسرت میں جلنے والی، خاکسر ہونے والی اس بیچاری کنیز کا سوچیے، رحم کیجیے، مجھے اپنے پاس رہنے دیجیے، اور کچھ نہیں تو اپنے دست مبارک کو ہی چھونے دیجیے. عفیفہ خاتون نے مجھے سب کچھ بتا دیا. اس کا مطلب عفیفہ نے میری بات نہیں مانی، اس نے میری حکم عطولی کیا. سلیمان، وہ وفات پا چکی ہیں. کیا؟ عفیفہ مر گئی کیا؟ ہاں، اللہ کی رحمت میں چلی گئی وہ. کیسے وفات ہوئی؟ ایک حادثے میں انہیں کھو دیا. آخری سانسیں لیتے ہوئے انہوں نے مجھے یہ سب کچھ بتایا تھا. مجھے اپنے پاس رہ کر
अपनी तकलीफ का इलाज करवाने दीजिए। कैसे पेश आया वो हादसा? मरहूम शहजादे के लिए फलाही इदारे में कुरान खानी करवाई थी। वहां से मस्जिद जाने के दौरान वो हादसा पेश आया। एक गली में ज़ेरे तामीर इमारत से बहुत से पत्थर अचानक ही हमारे सरों पर आ गिरे। तुम कैसे महफूज रही? शुक्र है खुदा का कि उसने बचा लिया। आपकी खातिर बख्श दिया, बिल्कुल ऐसे जैसे आपको मेरी खातिर बख्श दिया। अब आप आराम कीजिए सुलेमान, मैं आपका ख्याल रखूंगी। आपकी सेहत के लिए, आपकी तंदुरुस्ती के लिए, खुशियों भरे दिनों को वापस लाने के लिए मैं हर तदबीर आजमा कर देखूंगी। आका ने कैसे इस तरह मिर्जा को भेज दिया? अल्लाह ने चाहा तो कोई मुसीबत नहीं आई होगी उस पर। शहजादी, कुछ देर कबल खबर मिली, बहुत दुख हुआ। ये तुम क्या कह रही हो मेहरमा? हाय अल्लाह, अलकास मिर्जा पर आने वाली मुसीबत का आपको इल्म नहीं है क्या? आका ने उसे दियारे अजम में छोड़ दिया, ये मालूम है मुझे, लेकिन वो जरूर वापस आएगा। उसका वापस आना मुमकिन नहीं। अलकास मिर्जा बदकिस्मती से अपने बिरादर तैमास के हाथ लग गया है। उसे जिंदान में बंद कर दिया गया है। उसकी फांसी का फैसला हो चुका है, बल्कि शायद अब तक दी भी जा चुकी होगी। तुम झूठ बोल रही हो, मुझे यकीन नहीं तुम्हारा। रुस्तम पाशा अपने कमरे में हैं, चाहे तो आप उनसे पूछ लें। अफसोस, कितनी उम्मीदें लगाई हुई थी आपने, दूसरी बहार देखनी थी, लेकिन किस्मत, मौसम बहार कैसे मौसम खिजा में बदल गया। सफर पर जाने वाले सालारों से गुफ्तगू हुई। हर एक छुपाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हादसा सबको मालूम हो चुका है। आका का अल्लाह उन्हें शिफा दे बीमार होने का बताया जा रहा है। शहजादे, मैं समझ गया था पाशा। आका ने जब हमसे मिलने के बजाय हमें भेज दिया तो मैं उसी वक्त समझ गया था। बीमारी क्या है आका को? हुक्मा से मिल चुका हूं, लेकिन ज्यादा तफसील मालूम नहीं हो सकी। शहजादे सर झुका देते हैं, राज नहीं बताते। तंबीह की गई है लगता है। ऐसी एहतियात से सूरत हाल मुझे संगीन मालूम होती है। ब्याजत भी मुझसे सूरत हाल छुपाने की कोशिश कर रहा है। कौन जाने वो क्या मंसूबा बना रहा है अपने जहन में, कौन जाने दूसरे क्या सोच रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में शहजादे मेरे ख्याल में खामोश रहने को तरजीह देनी चाहिए। तख्त पर नाजुक वक्त है, ये कहो ना तुम पाशा। हम छुपाने की चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन आका की सूरत हाल बहरहाल सामने आ ही जाएगी। मोहतात रहना होगा हमें, यानी चरबी पुरसुकून नहीं रहेंगे। फरहत आका अपनी आंखों से आका की वो हालत देख चुका है। शहजादे मुस्तफा के तख्त पर आने के लिए वो दिन गिन रहा है। शहजादी। रुस्तम पाशा। हाँ, अलकास मिर्जा कहाँ है, कैसा है? फौरन वजाहत दो मुझे। तमास के हाथ लग गया है, क्या ये दुरुस्त है? अफसोस कि ये दुरुस्त है शहजादी। अलकास मिर्जा अपना वादा नहीं निभा सका तो आका ने भी उसे अपने साथ रखना नहीं चाहा। यकीन कीजिए कि मैंने उसके लिए बहुत कोशिश की,
लेकिन मैं किसी तरह भी आका को कायल नहीं कर पाया। क्या तुमने दुश्मन के हवाले किया था उसको? एलकास मिर्जा ने अपनी मर्जी से कदम उठाया। मरवान शहर में उसने पनाह ले ली। ये खबर सुनते ही तहमास ने उस शहर का मुहासरा कर लिया। एलकास मिर्जा ने मजबूरन खुद को हवाले कर दिया अपने बिरादर के। तहमास ने उसे काह किले में बंद कर दिया। मालूमात के मुताबिक उसे फांसी दी जाएगी। मुझे अफसोस है शहजादी। आका से आपकी मुलाकात हुई है क्या वालिदा? तुम सबके इल्म में लाने के लिए खुसूसी मसला है। तुम लोगों को किसी और से पता चले नहीं चाहती मैं। आओ। वालिदा, मुझे याद किया आपने? आओ बैठो सलीम। मालूम हुआ है कि आका काफी अरसे से एक संगीन बीमारी में मुब्तला है। कैसी बीमारी में वालिदा? परेशान मत हो, बुखार जैसी बीमारी है और हकीमों ने मुस्बत जवाब दिया है। अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे वो इंशाअल्लाह। आमीन। तुम जानते थे और तुमने जानबूझकर मुझे नहीं बताया। मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया सलीम। आका ने यही चाहा, वरना मैं क्यों छुपाता? ऐसी सूरत हाल से फायदा उठाने का सोच रहे होगे। अपनी जानिब से किसी को मालूम होने से पहले ही तुमने अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली होगी ना? कैसी तैयारी? तुम होते कौन हो मुझ पर ऐसा घटिया इल्जाम लगाने वाले? बयासत, ये मत भूलो कि मैं भी यहीं मौजूद हूँ। वालिदा, आपने सुना नहीं इसने क्या कहा? ये इल्जाम तराशी का वक्त नहीं है, बल्कि एक होने का वक्त है। क्योंकि ये बात तुम लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है कि हमारे सिवा और कोई दोस्त नहीं है। ये कतई नहीं भूलना तुम लोग। और याद रखना, आका की सेहतयाबी की दुआ करने के अलावा किसी ने भी कोई भी कदम उठाया तो अपने मुकाबिल मुझे पाएगा। बात समझ आ गई? बयासत, इसके अलावा कुछ सोचा भी नहीं जा सकता। आला। मेहरमा, 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 कहाँ जा रही हो तुम? वालिदा, मैं बाबा को देखना चाहती हूँ, मुझे इजाजत दीजिए, देखकर तसल्ली कर लूं। अभी नहीं, आराम करने दो उन्हें, क्योंकि वो बहुत कमजोर हो गए हैं। मैं तुमसे वादा करती हूँ, वो जरा बेहतर हो जाए तो फिर हम दोनों उनसे मिलने चलेंगे। अगर ठीक ना हुए, अगर उन्हें कुछ हो गया? अल्लाह ना करे। मेहरमा, मेरी जान सी दुख्तर,
तुम्हारी मौजूदगी बहुत अहम है मेरे लिए। इस दुश्वार वक्त में हमारे साथ रहो मैं चाहती हूं, क्योंकि इस सूरत हाल से फायदा उठाने वाले खुश हो जाएंगे। वो हमें फूट डालने की कोशिश करेंगे, इसलिए मजबूती से खड़े रहकर उनके सामने अपना हौसला बुलंद रखना होगा हमें। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? एक लम्हा भी अगर कोताही हुई तो हमारा कलेजा नोच डालेंगे, तुम्हारे ब्रादरान को हमसे छीन लेंगे। समझ गई तुम? याद रखना, अगर हम मजबूत नहीं रहे तो वो सालिम इक़्तिदार पर कब्जा कर लेंगे। ब्याज़त से नाराजगी की कोई जरूरत नहीं। क्या तुम्हें हैरत नहीं हुई इस बीमारी का सुनकर? दुरुस्त। किससे मालूम हुआ तुम्हें? रुस्तम ने तो नहीं बताया। रुस्तम भी जानता है यानी? अब मैं समझा, पूरा मंसूबा मुकम्मल है। वालिदा अगर नहीं बताती तो छुपाए रखते तुम। हमारे बाबा सख्त बीमार हैं सलीम, उनके लिए सुरता होने के बजाय तुम ऐसी बातें कर रहे हो, मुझे अफसोस है। दरअसल मैं सिर्फ इस पर हैरान हूं, तुम्हारी तो फितरत ही ऐसी है। अब अगर सबको ही मालूम है तो ये बात मुस्तफा ब्रादर को भी मालूम हो जानी चाहिए। उनकी यहां मौजूदगी बेहद जरूरी है। उन्हें मकतूब लिखकर सूरत हाल से आगाह करना होगा। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं जहांगीर, क्या लिखोगे तुम उस मकतूब में? आका बिस्तर मर्ग पर है, तख्त आपका इंतजार कर रहा है। हर किसी को अपने जैसा समझते हो तुम। जिस तरह तुम और मैं यहां हैं, मुस्तफा ब्रादर कभी पाया तख्त में होना उनका हक है। मैं सल्तनत का नायब हूं इसलिए यहां हूं ब्याज़त। तुम सफर से उनके साथ आए हो इसलिए यहां हो। लेकिन मुस्तफा बिरादर अगर यहां है तो उनकी वजाहत नहीं होगी। अपनी कामत से ऊंचे काम करने की कोशिश ना करो। सलीम, क्या खुद को तुम अब तक नाइब समझ रहे हो? मैंने जो कहना था कह दिया ब्याज़त। चंद ही रोज में आका इंशाअल्लाह पहले की तरह सेहतमंद हो जाएंगे। और अगर मुस्तफा बिरादर को उन्होंने यहां देख लिया तो उसका हिसाब कोई भी नहीं दे सकेगा। बाद में कहर और गजब का निशाना बनोगे तुम दोनों। अभी से मैं बता रहा हूं। हाँ तो यूसुफ साहब, तलवारबाजी की तो तुमने खूब मशक कर ली, अब बारी है तीर चलाने की। कमान को यूं पकड़ो बीच से, हाँ ऐसे। अब तीर को इसमें अच्छी तरह लगाओ, मजबूती से पकड़ो। ये हाथ इस तरह बिल्कुल सीधा रहेगा। अब इसे जोर से खींचो, और जोर से खींचो, और जोर से, अच्छी तरह से शिस्त बांधो और फिर छोड़ दो। छोड़ो। मार दिया। अच्छा था, काफी अच्छा था। दाऊद, यूसुफ जैसे बताया है वैसे ही करते रहो। आखिर तुम आ ही गए। कहां थे तुम? पाया तख्त में काम कुछ ज्यादा था, तुमसे कोई मिलने आया है। रईस, तुमसे बाद में बात करूंगा अब्दुल्ला। पहले मुझे शहजादे मुस्तफा से मुलाकात करनी है। आओ। पाशा मोहतरम, मेहरमा सुल्तान तशरीफ लाई हैं, आपसे मिलना चाहती हैं। भेज दो उसे। शहजादी। पाशा, वालिदा ने सारे हकीमों को तंबीह कर दी है। शायद कोई भी मुझे ठीक से वजाहत नहीं दे रहा है। परेशान होने की जरूरत नहीं, अल्लाह ने चाहा तो आकर जल्द ही सेहतयाब हो जाएंगे। लेकिन क्या? लेकिन हर तरह की सूरत हाल के लिए तैयार रहने की जरूरत है। ये मुमकिन नहीं पाशा, जिनकी बात कर रहे हो वो मेरे बाबा हैं। मौत तो अल्लाह के हुक्म से होती है शहजादी, किसी मनसब मकाम को नहीं जानती। हमारा काम सिर्फ दुआ करना है। इजाजत चाहता हूं शहजादी।
आपको इस बात का अंदाजा होगा कि आका की नासाजी तबाह के बाइस मुझ पर उमूर सल्तनत का भारी बोझ आ पड़ा है। ख़वातीन, इतना मरहम काफी है। तुम दोनों जा सकती हो। ठीक हो जाएंगे आप सुलेमान। आपकी बीमारी की तदबीर करने के लिए तमाम हुकूमत दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मेरा रब मुझे इस बिस्तर से उठना नसीब करेगा क्या? जरूर नसीब करेगा। जरूर अपने कदमों पर खड़े होंगे आप। मुझे, आपकी औलाद को, सारी आवाम को, इस सल्तनत को अभी आपकी जरूरत है सुलेमान। पीरी रईस का यहाँ क्या काम? आखिर वो किस लिए आया है? कोई अहम बात करनी होगी आपसे शहजादे। मिलना फायदेमंद होगा। बुलाओ उसे। पीरी रईस को जानती हूँ। मरहूम बाबा से उनकी अक्सर मुलाकात रहती थी। वो तुर्कों के सबसे अजीम मालिम हैं जिनकी हर बात को मुस्तनद करार दिया जाता है। उनकी वफादारी पर कोई शक नहीं। ये सब तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए निसा, कोई भी फर्द इस खानदान के इक़्तिदार की खातिर मुझे कमजोर नहीं कर सकता। मैं राजी नहीं हूँगा। आओ। शहजादे मोहतरम, शहजादी। इंशाल्लाह इस अचानक मुलाकात का कोई माकूल सबब होगा पीरी रईस। मेरे साथ यहां जो भी लोग हैं, मुझे इन पर एतमाद है। कहिए। मुलाकात का सबब हमारे आका की सेहत के मुताल्लिक है। मुझे अफसोस है शहजादे, वो इस वक्त एक संगीन बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं। कैसी बीमारी? बीमारी जो भी है उसे एक राज की तरह छुपाया जा रहा है, लेकिन सूरत हाल संगीन है या आश्कार है। तबरेज में सिपाहियों के सामने बेहोश हो गए आका। इस्तांबुल तक बग्गी में आए ये बताया जा रहा है। बिल्कुल ठीक थे जब आखिरी बार देखा था। अचानक ऐसा क्या हो गया उन्हें? किसी से बीमारी तो नहीं लग गई? मैं नहीं समझता। बहुत मुश्किल सफर था। हालात आप जानते हैं, और आका की उम्र भी अब काफी हो चुकी है। आसाद भी जवाब दे चुके हैं। अब जो कुछ जानते हैं वो सब बताइए। जो कुछ भी हुआ है ये तो सिर्फ आपको पाया तक पहुंचने के बाद ही मालूम हो सकेगा। खास तौर पर शहजादा सलीम और शहजादा बयाज़त की वहां मौजूदगी के सबब आपकी मौजूदगी फर्ज हो चुकी है। इसका क्या मतलब? खुदा न खास्ता आका अगर अल्लाह की रहमत में चले गए तो आपकी भी वहां मौजूदगी की जरूरत होगी। दूसरी सूरत में रुस्तम पाशा कोई भी साजिश करके आपके बिरादरान में से किसी को भी तख्त नशीन करवा सकता है।
क्या हाल है आपका उमर साहब? शुक्रिया आगा, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। ये चप्पल कितने की है? 3 अशरफियों की आगा, वो भी तुम्हारे लिए। कितनी महंगी बेच रहे हो आदम? अभी कल ही की तो बात है कि तुम रो रहे थे कि कोई माल नहीं खरीदता। वाह भाई वाह। सिपाही सफर से वापस आ गए हैं सुम्बुल आगा, क्या तुम देख नहीं रहे बाजार में कितनी रौनक आ गई है? भला हो यनीचर का, काफी मालो दौलत के साथ लौटे हैं। यनीचर की मेहरबानी से कारोबार में भी बहुत तेजी आ गई है, शुक्र है खुदा का। हाँ देख रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। शुक्रिया आगा। माशाल्लाह, 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 माशाल्लाह। आया आगा, आ रहा हूँ मैं, मेरे सिर्फ 2 ही हाथ हैं। आया आया। याकूब, अरे भाई कहवा कहाँ रह गया? आया आया। कसम से दुकान पर इतने लोग देखकर मैं समझा कि शायद गलत जगह पर आ गया हूँ। कितनी तादाद में लोग जमा हो गए हैं माशाल्लाह। और तुम कह रहे थे कोई भी नहीं पिएगा इस जहर को। वैसे भी कहाँ पी रहे थे आका? कहते थे जायका तल्ख है, अगर इसमें जरा सा दूध मिला के देखें तो। अरे चुप करो, कैसा दूध? मिठाई की दुकान है क्या ये? और कितनी देर इंतजार करना पड़ेगा, कब लाओगे? आया आगा, आया आया। और तुम कह रहे हो पी नहीं रहे। अगर ये पी नहीं रहे तो फिर क्यों इतने सारे लोग बैठे हैं यहाँ? बातें करने आए हैं आका, सुबह के कहवे के बहाने यहाँ बैठकर बातें कर रहे हैं। ओह छोड़ो ये बकवास करना। आखिर क्या बातें कर रहे हैं? उनके कहने के मुताबिक महल में हलचल मची हुई है। सुल्तान सुलेमान खान की सूरत हाल ठीक नहीं है, उनके पाँव कब्र में है ये कह रहे। चुप करो, अच्छी बात मुझसे निकालो। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह की मनहूस बात करने की? मलून, मुझ पर क्यों गुस्सा हो रहे हो आगा? यहाँ बैठे यनीचरों की बातें सुनकर मैंने ये सब कहा। कौन से? ये 3 जो बैठे हैं। ये 3? हाँ ये। शहजादे का हाल देखकर मुझे लगा कि जैसे कोई बुरी खबर सुना दी हो मैंने। ये उनके लिए इख्तिदार का सुनहरी मौका है। आप क्या अब तक नहीं समझे रईस? आका को उन जैसा चाहने वाला और वफादारी करने वाला इस जहां में और कोई नहीं है। अमसिया का मौसम तुम्हें रास नहीं आया अब्दुल्ला। आका पर हमला होने वाली बात को मैंने शहजादे से पोशीदा रखने के लिए कहा था, लेकिन तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। रईस, मुझे जानते हैं आप, मैं इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ दुरुस्त चीजों पर यकीन रखता हूँ। ऐसी कोई भी बात मैं उनसे छुपा नहीं सकता था। क्या ये पहली चीज थी छुपाने वाली? शहजादे ने सब बातों के बावजूद भरोसा किया, मुझे अपना मुहाफिज कबूल किया, एतमाद किया मुझ पर। यही वजह है कि मैं उनसे कुछ भी नहीं छुपा सकता हूँ रईस। इसका मतलब है हमारे रास्ते अलग हो रहे हैं अब्दुल्ला, तुम्हारी यही ख्वाहिश है? ऐसा करने की सजा जो भी है मैं भुगत लूंगा। तुम्हारा फर्ज यह है अब्दुल्ला कि तुम शहजादे मुस्तफा को कोई जरर न आने दो, और तुम ये काम हमारे साथ रहकर करो या अलग होकर, तुम्हारी मर्जी। सुम्बुल के महल से जाने के बाद तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा है फारिहा। अब आका के बीमार होने की वजह से मैं अपने आप को काफी तन्हा महसूस कर रही हूँ आजकल। आप फिक्र ना कीजिए मलिका, जो कुछ मेरे बस में है मैं वो हमेशा करती रहूंगी। तुम खुद को हल्कान मत करो, जब बिल्कुल ठीक हो जाओ तो फिर अपनी जिम्मेदारी संभाल लेना। आओ। मलिका, शहजादे सलीम मोहतरम आपसे मिलना चाहते हैं। भेज दो। वालिदा, खैर तो है मेरे बेटे? मेरे बिरादरान वालिदा, ब्याजत और जहांगीर बिरादर मुस्तफा को आका की मौजूदा सूरत हाल का बताने के लिए जरूरत से ज्यादा ही बेताब हो रहे हैं। उन्हें इसकी जरूरत पेश नहीं आएगी। महल के परिंदे बहुत पहले ही खबर पहुंचा चुके होंगे। ये तो है, लेकिन अहम बात यह है कि मुस्तफा बिरादर ये खबर सुनने के बाद क्या कदम उठाएंगे। फैसला कर लिया क्या आपने शहजादे? उम्मीद है पाया तक जाने की नियत होगी आपकी, क्योंकि सल्तनत आलिया के लिए आपका जाना बेहद सूदमंद होगा। आका से मिलने की मेरी भी बहुत ख्वाहिश है। मैं उनकी सेहत के लिए बहुत फिक्रमंद हूं, लेकिन
अगर मैं फौरन वहां गया तो हर कोई समझेगा कि तख्त के लिए आया हूं। मुझे चाहने वाले भी इसी गलतफहमी का शिकार हो जाएंगे। और यही दुरुस्त भी है। एक शहजादे को तख्त का सोचना चाहिए, और जब आका की तबीयत नासाज हो तो आका के इस दुनिया से रुखसत होने के बाद मैं जिसका मुस्तहिक हूं उस तख्त पर जरूर बैठूंगा रईस, और कोई भी ताकत इसमें रुकावट नहीं बन सकती। ठीक कहा ना मैंने? इसमें कोई शक नहीं है शहजादे, लेकिन ये सब कुछ एक खूनी जंग में भी बदल सकता है। रईस से बात हो चुकी है दाऊद। अब से मैं सिर्फ शहजादे की हिफाजत पर मामूर हूँ। क्या कह रहे हो? मुझे नजरअंदाज कर दिया जाहिर है, लेकिन मैं शहजादे की अपनी जान से भी ज्यादा हिफाजत करूंगा। इस वजह से माफ कर दिया। अब तुम्हें भी अपनी तरजीह तय करनी होगी। मेरे साथ यहां पर रहोगे तुम, या फिर रईस के साथ जाओगे? हम इस रास्ते पर साथ निकले थे अब्दुल्ला। जहां तुम रहोगे मैं भी वहीं रहूंगा। खुर्रम सुल्तान गहरे सदमे से दो चार हैं, अपनी सेहत का भी ख्याल नहीं रख रही, इसीलिए हमें बहुत ज्यादा मोहतात रहने की जरूरत है। मेरे मुंह में खाक, लेकिन आका को हम खो भी सकते हैं, और फिर उस वक्त एक खौफनाक आग के बीच पाएंगे हम खुद को। लेकिन आप परेशान ना हो, हम उस आग पर काबू पा लेंगे और ताज आपके सर पर सजेगा। मुस्तफा बरादर के साथ एक वादा किया है जहांगीर। वो दिन आएगा जब इख्तिदार इन्हें नसीब होगा तो ये कभी भी तख्त का झगड़ा नहीं होने देंगे। ये इस जहां पर हुक्मरानी करेंगे और मैं इनकी मदद करूंगा। मुस्तफा बरादर के होते हुए ये मुमकिन ही नहीं। बराह करम आप इस अजीम सल्तनत के मुस्तकबिल के हवाले से गौर कीजिए, क्योंकि अब इस सल्तनत की बागडोर आप ही ने संभालनी है। अच्छा, तो सलीम का क्या होगा? शहजादे सलीम इस वक्त तन्हा हैं बिल्कुल। अगर अल्लाह की मदद साथ रही तो आप तख्त नशीन होंगे। उनकी तकदीर आपकी जुम्बिश लब की मुंतज़िर होगी। आप क्यों इतने परेशान हैं? मैं नहीं समझ पा रही हूँ। अब तो वालिदा भी आपके साथ हैं, और देखिए उन्होंने खुलकर आपको अपनी हिमायत का यकीन भी दिलाया है। आप तख्त के कभी इतने करीब नहीं थे। तुम समझ नहीं पा रही हो नूर बानो, बिल्कुल नहीं समझ पा रही। गुज़िश्ता 2 बरसों में जो कुछ देखा, जो कुछ सुना, उससे बहुत कुछ सीख चुका हूं। सल्तनत का नायब होने के बावजूद मैं एक साए की तरह घूमता रहा हूं हर वक्त। किसी ने भी ना देखा और ना सुना मुझे। हर किसी के दिल में तख्त के जानशीन बिरादर मुस्तफा हैं। सिपाहियों के, अवाम के, तमाम दुआएं उनके लिए हैं। वो नहीं तो ब्याजत होगा। रुस्तम और मेहरमा भी उसके साथ हैं। सूरत हाल जब ऐसी हो तो वालिदा की हिमायत पर किस तरह एतमाद कर लूं? कैसे इत्मीनान कर लूं? अगर अपनी शिकस्त कबूल कर ली जाए तो फतेह हमेशा के लिए ख्वाब बन जाती है। खुर्रम सुल्तान की हिमायत को मामूली ना समझें। उन्हें सिपाह की जरूरत नहीं, ना ही तलवार की, क्योंकि वो खुद एक ताकत और जहामत की मालिक हैं। उनकी तो परछाई ही काफी है दुश्मनों को नेस्तो नाबूद करने के लिए। अगर नेस्तो नाबूद होने वाले हम ही हुए तो? सूरज हमारे साथ है सलीम, और मुस्तफा बरादर जब तक यहाँ मौजूद नहीं है, आप मौजूद हैं, और वो भी तख्त से सिर्फ चंद कदम के फासले पर। शहजादी, वक्त तेजी से गुजर रहा है। शहजादे यहाँ कयाम करने पर बसे थे, फिर भी हमें वही करना होगा जो हमारा फर्ज है। तुम्हारा क्या मशवरा है या साहब? तुर्गत रईस को कायल करते हैं। वो खुद अगर ना भी आए, सूरत हाल तो वाज़ेह हो जाएगी। तुम क्या कहते हो अब्दुल्ला? शहजादे ये काम किसी खून खराबे के बगैर करना चाहते हैं, इसलिए खलीज में जहाजों को उतारना शर्त है। महल का रुख करने वाली तोपें किसकी तरफ हैं ये मालूम हो जाएगा। सच है ये। शहजादे की तख्तनशीनी की खातिर पाया तक रवाना होने से पहले बहरिया की कुव्वत हमारे साथ होनी चाहिए।
मैं फौरन तुर्गत रईस और अपने बरादरान को मकतूब लिखकर उनसे मशवरा करती हूँ। अगर अमीरुल बहर महमद पाशा ने हमें रोकने की कोशिश की तो? बरादरान को देखकर वो फरार के लिए जगह तलाश करता फिरेगा। हमारी मर्जी के बगैर वो एक कश्ती भी पानी में नहीं उतार सकता। माहिदौरा सुल्तान को खबर भिजवा दी है क्या? उनकी वापसी कब है? वो मजीद कुछ अरसा बेहान सुल्तान के पास रहेंगी। खुदा ने चाहा तो पाया तख्त में वो वालदा सुल्तान बनकर जाएंगी। मुझे याद किया आपने पाशा मोहतरम। तुम जानते हो हम इस वक्त बहुत नाजुक दौर से गुजर रहे हैं सुकुल्लू। कल क्या कुछ हो जाए किसी को नहीं मालूम। मुझे एहसास है पाशा, आका की नासाज तबीयत से हर एक मुतासिर है। कदम मजबूती से जमाने की जरूरत है। तुम्हें इसी वजह से बुलवाया है। हमारी बहरिया में बाज रईस ऐसे हैं जो अपनी हुदूद से तजावुज कर रहे हैं, खास तौर पर तुर्कत रईस। उसे हर सूरत में पाया तख्त से दूर रखना होगा तुम्हें। कतन वो इस तरफ को रुख ना करे। आपका जो हुक्म पाशा। आओ। मलिका। सुंबुल, आओ बैठो। बहुत शुक्रिया। बिना इतला दिए ही आ गए। कसम से मलिका आप ठीक कह रही हैं, लेकिन बाजार में आका की सेहत के मुतालिक बातें सुनकर खुद को आने से रोक न सका मैं। लोग बातें बना रहे होंगे ना सुंबुल? वल्लाह क्या हुआ है ये कोई नहीं जानता। हाँ ये सच है कि कोई नहीं जानता, लेकिन आका जब से आए हैं तब से बिस्तर पर दराज है। बुखार कम नहीं हो रहा, बहुत तकलीफ में है। या अल्लाह मेरे आका की हिफाजत फरमा। आमीन। मैं जितनी भी साबित कदम हो जाऊं, खुद को जितनी भी तसल्ली दे लूं, लेकिन न जाने क्यों मेरा दिल कह रहा है कि शायद कुछ बहुत बुरा होने वाला है। अगर उन्हें कुछ हो गया, अल्लाह ना करे। मलिका मेरी बस एक ही दुआ है कि आका जल्द अज जल्द सेहतयाब हो जाएं। लेकिन आप अपने अंदर की इस आवाज पर कान न धरें, इसे किसी तरह की भी अहमियत न दें और उम्मीद रखें अल्लाह जल्द सेहतयाब कर देगा आका को। मेरी दुनिया वही है सुंबुल। मेरे चांद, मेरा सूरज, मेरे अंजुम वही है। मेरी बहार, मेरी जान, मेरी रूह वही है। मेरी हर सांस, मेरे दिल की धड़कन और मेरी जिंदगी वही है। अल्लाह जानता है मेरे दिल को, मेरी रूह को, मेरी हयात वही है। मैं आपका दुख समझता हूँ मलिका, लेकिन अगर आप यहाँ आंसू बहाएंगी तो आपके दुश्मनों को भी मौका मिल जाएगा, ये आप हरगिज न भूलें। हो सकता है पहले ही उन्होंने तदबीर कर ली हो। शहजादे मुस्तफा को तख्त नशीन करने की मुकम्मल तैयारी कर चुके होंगे। अल्लाह आपकी और शहजादों की हिफाजत करे, आमीन। मेरी तमाम उम्र इसी खतरे में गुजरी है सुंबुल। मैं बरसों से सोच रही हूं, अगर वो दिन आया तो मैं क्या करूंगी, ये सवाल करती हूं खुद से। सिर्फ एक ही जवाब मिलता है मुझे, और वो है शहजादे मुस्तफा का आका से पहले इस दुनिया से जाना। अल्लाह से नाउमीद मत हो मलिका, आप कितने दुश्मनों को शिकस्त दे चुकी हैं। मैं औलाद की खातिर साबित कदमी से खड़ी रहूंगी, किसी के सामने गर्दन नहीं झुकाऊंगी। लेकिन इस जंग से नतीजा एक ही निकलेगा। शहजादा मुस्तफा बहुत ताकतवर है। ये गंभीर सूरत हाल जब तक रहेगी, तख्त उसी का रहेगा। मलिका तो फिर ये सूरत हाल बदल देते हैं।
शहजादी, आओ मलिक, आओ। ये बताओ कि आका की सेहत के मुतालिक कोई खबर है तुम्हारे पास? नहीं, मुझे कोई खबर नहीं शहजादी, क्योंकि हुरम सुल्तान हकीमों के सिवा किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं दे रही हैं। जल्द से जल्द ठीक हो जाए, वो यही चाहती होगी। बस सूरत दीगर नया निजाम कायम करने की जरूरत होगी, मैं जानती हूं। वालिदा को, खजीना को, पारकाली इब्राहिम पाशा को, और फिर मुझे। हुरम की वजह से आका ने कैसे आग में झोंक दिया। शहजादी, मैं आपका दुख समझ सकती हूँ। आप बहुत अजियत में हैं, मगर खुदा के लिए खुद को संभालिए। आप यहाँ पर सिर्फ शहजादे मुस्तफा की खातिर आई हैं, और उनकी खातिर आपको खुद को संभालना होगा। मलिका, सूरत हाल क्या है रुस्तम पाशा? शहजादे मुस्तफा कहाँ हैं? क्या कर रहे हैं? मैं ये समझ रहा था आप इस मसले के मुतालिक गुफ्तगू नहीं करेंगी। ऐसे अंदेशों को अपने जहन में लाना नहीं चाहती हूं मैं। दुरुस्त है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मैं कोई तदबीर भी नहीं करूंगी। शहजादे मुस्तफा की जानिब से कोई आवाज नहीं आई, लेकिन रियासत से जैसे ही निकलेंगे उस वक्त खबर मिल जाएगी हमें। असल खतरा तो यनीचर फरहत आगा है। दरअसल उसे रोकने की जरूरत है। सो कुल्लू समंदर पर हाकिम होगा। आला, शहजादे मुस्तफा को कतन पाया तक नहीं आना चाहिए। इसकी इजाजत नहीं दी जाएगी उन्हें यहां से दूर रखना होगा। और अल्लाह न करे अगर आका को कुछ हो गया तो तख्त पर सलीम बैठेगा। जबान टकमगा गई आपकी। आपने बियाजत कहना था। मैंने जो कहा है अच्छी तरह जानती हूं। अफसोस है कि बियाजत हकीकत नहीं देख रहा। मैं उसकी गलतियों के सबब ऐसा नहीं कह रही, बल्कि मुस्तफा के साथ उसकी वफादारी के सबब मैं खतरा महसूस कर रही हूं। लेकिन उसे इसका कोई एहसास नहीं। दुश्मनों के साथ मिल चुका है। मैं खुद उनसे गुफ्तगू कर चुका हूं मलिका। शहजादे बियासत हालात की संगीनी को समझते हैं। हम उन्हें जैसा कहेंगे वो उसी तरह पेशरफ करेंगे। ऐसा कब से होने लगा कि तुम मेरी कही हुई बातों से इख्तलाफ करने लगे हो रुस्तम पाशा? माजरत मलिका, लेकिन आप अगर नजरअंदाज कर भी दें तो मैं शहजादे बियासत को नजरअंदाज नहीं कर सकता। मैं उसे नजरअंदाज नहीं कर रही। औलाद है वो मेरी। लेकिन बियासत का मिजाज तुम बखूबी जानते हो। हमेशा ही वो गहरी खाई के किनारे पर रहता है, अपनी कयामत से 2 कदम की दूरी पर। जैसा कि मैंने कहा है, वो मुस्तफा का वफादार है। और सलीम अब पहले वाला सलीम नहीं रहा है। उसे हर चीज का एहसास है, तदबीर से काम ले रहा है। मुस्तफा जब तक जिंदा सलामत है तब तक सबसे बेहतरीन इंतखाब वो ही है। आका, सुलेमान, मेरी औलाद कहाँ है? शुक्र है कि आप होश में आ गए। सब बहुत रंजीदा है।
आपके लिए दुआएं कर रहे हैं वो। मैं देखना चाहता हूं उसको। लुकमान आगा, फौरन पिसरान को बुलवाओ। मेरी जान के बादशाह सुलेमान, आपको तो बहुत तेज बुखार है। आगा, फौरन हकीम को बुलाओ जाकर, जल्दी। सुलेमान, सुलेमान। बादब, फरत आगा तशरीफ ला रहे हैं। आका की सूरत हाल क्या है आका? गलियों और बाजारों में उनकी बीमारी का चर्चा है। अफवाहों पर एतबार मत करो। आका की तबीयत बेहतर होती जा रही है, और अगर आका की सूरत हाल संगीन होती तो पहले मुझे मुत्तला किया जाता। क्या मालूम छुपाया जा रहा हो, शायद वो पहले मुमकिन नहीं। फर्ज करो अगर छुपाया भी गया और किसी साजिश से या हीले बहाने से शहजादा सलीम को या फिर शहजादे बयाज़त को तख्त नशीं कर दिया तो उस वक्त ऐसा करने वालों को हमारी तेरे गजबनाक का सामना करना होगा। वालिदा, तस्वीर मजाक कर रही है हमारे साथ। कुछ देर के लिए होश आया था, लेकिन फिर से ऐसे सवाल और ऐसे अंदाजे खतरनाक भी साबित हो सकते हैं, बल्कि सर भी कलम हो सकते हैं। करने के लिए कहा है। लगता है आका की तबीयत मजीद खराब हो गई है। मेहरमा, आका कैसे हैं? ठीक नहीं है, हमें भी इसीलिए इंतजार करवाया जा रहा है। शहजादे, हुरम सुल्तान ने किसी को भी हट जाओ। वालिदा, तस्वीर मजाक कर रही है हमारे साथ। कुछ देर के लिए होश आया था, लेकिन फिर से पाशा, ये नीचर के सालार फरत आगा आए हैं। भेज दो। खैरियत तो है फरत आगा? इस मुलाकात का सबब क्या है? ये नीचर बहुत बेचैन है पाशा। आका की सूरत हाल जानना चाहते हैं, लेकिन हमें वजाहत देने वाला कोई नहीं। महल से करीबी ताल्लुक है आपका, आपको कोई मालूमात जरूर होगी। आका बहुत जल्द मुकम्मल तौर पर सेहतियाब हो जाएंगे। आपने फजूल में जहमत की यहां आने की। इसके अलावा ऐसे सवाल और ऐसे अंदाजे खतरनाक भी साबित हो सकते हैं, बल्कि सर भी कलम हो सकते हैं। शुक्र है खुदा का, बुखार कुछ कम हो गया है।
क्या सबब है इस बुखार का हकीम साहब? इस बीमारी से जान नहीं छूट सकती क्या? हम पूरी कोशिश कर रहे हैं शहजादे। सफर के दौरान काफी जिस्मानी थकन हो गई थी, इन्हें संभलने में कुछ वक्त लगेगा। दुआ कीजिए सूरत हाल मजीद खराब ना हो। फरहत आगा आपके हुजूर आने की जसारत न कर सका जाहिर है, लेकिन वो मेरे पास मुलाकात के लिए आया था और दबे लफ्जों में कह गया कि उनके हाथों में तलवार है। उसूल के मुताबिक उसे नसीहत कर देते। मैंने उसे नसीहत कर दी है पाशा, लेकिन वो बहुत बेचैन दिखाई दे रहा था। लगता है कि बगावत का सोच रहा है वो। मुझे पहले से मालूम है। कुछ अरसे तक हमें खामोशी इख्तियार करनी होगी सोकुल्लू। हजारों मुसाहिबों की मौजूदगी में हम यानीचरों को अपने खिलाफ नहीं कर सकते। आका की सेहतयाबी के बाद हम उन्हें उनके औकात याद दिलाएंगे इंशाअल्लाह पाशा। लेकिन हर किसी के जहन में सिर्फ एक ही सवाल उठ रहा है। खुदा न खास्ता अगर आका बिस्तर से ना उठ सके तो खुदा का शुक्र है कि दोनों शहजादे यहां मौजूद हैं। सल्तनत की बका ही हमारा मकसद है। जिसका जो हक होगा उसे मिल जाएगा। कौन से शहजादे पाशा मोहतरम? शहजादे सलीम क्या? पाशा मोहतरम, पूरम सुल्तान आपका कमरे खास में इंतजार कर रही है। मुस्तफा ब्रादर को खबर भेजना फर्ज हो चुका है। ठीक कहते हो, उनका ज्यादा अरसा दूर रहना मुनासिब नहीं। नामुमकिन। ऐसा नहीं करोगे तुम। आका के हुक्म के बगैर उन्हें यहां बुलाना मुमकिन नहीं है। आका मुसलसल मुस्तफा ब्रादर का नाम पुकार रहे हैं और तुम इजाजत की बात कर रहे हो सलीम। इससे आला कोई और हुक्म क्या हो सकता है? ब्याजत पुरसुकून रहो। आका अपने होश में नहीं है ब्याजत। ये कतन कबूल नहीं किया जा सकता। क्यों है इतनी परेशानी? मुस्तफा ब्रादर तख्त पर बैठ जाएंगे, क्या ये खौफ है तुम्हें? होश में रहो जहांगीर। सलीम, तुम दोनों अपनी हद में रहो। मैं तुम दोनों से बड़ा हूं और आका के अपने कदमों पर खड़े होने तक सल्तनत का नायब भी हूं। मुझसे नफरत कर सकते हो तुम दोनों, लेकिन मेरा एहतराम करने पर मजबूर भी हो। मलिका, मुझे तलब फरमाया आपने। आओ मेरे साथ। शहजादे मुस्तफा को खबर भेज दो। माजरत मलिका, मैं समझ नहीं सका किस वजह से खबर भेजूं। पाया तख्त आने के लिए उसे मुनासिब मकतूब लिख भेजो। आप ये जो कह रही हैं उसका एहसास है आपको? आका यही चाहते हैं रुस्तम। उसका नाम पुकार रहे थे। हमें रोकना नहीं चाहिए। इस तरह तख्त शहजादे की हुजूर सोने की थाली की तरह पेश करने वाली बात होगी। एक गलत फैसले से, जरा सी गफलत से हमारा मुस्तकबिल तारीकी में डूब सकता है। इक्तदार, तख्त बेशकीमत है, लेकिन मेरे नजदीक
आका की ख्वाहिश हर चीज से ज्यादा मुकद्दम है, और अगर अल्लाह न करे ये उनकी आखिरी ख्वाहिश हुई तो मैं चाहती हूं कि शहजादे मुस्तफा फौरन यहां आ जाए। आओ। शहजादी, रुस्तम पाशा आए हैं। भेज दो। शहजादी, कैसे आना हुआ रुस्तम? अपनी दुख्तर से मिलने आया था। उमूर सल्तनत की मसरूफियत की वजह से काफी रोज हुए मिल नहीं सका था उससे। मुझसे मिलने क्यों आए हो ये पूछ रही हूँ। मुझे भी याद किया है क्या? आपके इल्म में लाने के लिए बाज अहम मसाइल हैं। रुस्तम कहीं बाबा? नहीं, आका की सूरत हाल में अब तक कोई फर्क नहीं आया। ये अहम बात हुरम सुल्तान के मुतालिक है। मुझे ऐसा लगता है कि वो शहजादे बेआसत को नजरअंदाज कर रही हैं। उनके जहन में तख्तनशीनी के लिए सिर्फ एक नाम है, शहजादा सलीम। ऐ मेरे खुदा, मौत अगर इस दरवाजे से अंदर आए तो मुझे अपने हमरा ले जाए। मैं अपनी मौत से पहले आपको मरने की इजाजत हरगिज़ नहीं दूंगी सुलेमान। अल्लाह मेरी उम्र भी आपको नसीब कर दे। आप जिएंगे सुलेमान। अगर ये उनकी ज़बानी ना सुना होता तो मैं कभी इस पर यकीन नहीं करता। और सिर्फ यही नहीं, शहजादे मुस्तफा को भी पाया तख्त बुलाने का हुक्म दिया है उन्होंने। मुझे लगता है शहजादी, हुरम सुल्तान अब अपनी कमजोरी का मुजाहरा कर रही हैं। सलीम नहीं हो सकता। वालिदा से बात करनी होगी, उन्हें अपना ख्याल बदलना होगा। कोई फायदा नहीं होगा, वो कतन अपना ख्याल नहीं बदलेंगी। आप तन्हा रह गई मेहरमा। तन्हा रह गई क्या वाकई? अभी कल तक तुम बेआजत को तख्तनशीन करवाने के लिए अपने सर की कुर्बानी देने को भी तैयार थे ना? वफादारी बदल ली है क्या? ये आप पर मुनहसिर है मेहरमा। अगर हुरम सुल्तान के खिलाफ कोई कदम उठाना है तो ये मेरे अकेले के लिए करना मुमकिन नहीं होगा। हमें यकजा होना होगा, बिल्कुल पहले की तरह। क्या तुम धमकी दे रहे हो मुझे? धमकी नहीं, समझौता। सिर्फ एक पेशकश है। या तो हमारी शादी बरकरार रहेगी या हमारे रास्ते जुदा हो जाएंगे। शहजादे, पाया तख्त से आया है ये, रुस्तम पाशा ने भेजा है।
کی صحت کے متعلق ہے کیا شہزادے؟ پایتخت بلایا جا رہا ہے. آقا مجھے دیکھنا چاہتے ہیں. شہزادے کوئی سازش نہ ہو. یحییٰ صاحب حق پر ہیں. رستم پاشا کا دعوت دینا عجیب ہے. آقا کی صحت جیسا کہ بتایا جا رہا ہے سنگین ہوتی تو آپ کو قطعاً پایتخت نہیں بلایا جاتا. چاہے کچھ بھی ہو جائے، اگر آقا نے مجھے بلوایا ہے تو مجھے جانا ہوگا. اور ویسے بھی آپ لوگ بھی تو یہی چاہتے ہیں. تیاری کیجیے، وقت ضائع کیے بغیر روانہ ہونا ہے. آغا پیری رئیس آئے ہیں، آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. بھیج دو. آپ کو یہاں دیکھنا میرے لیے باعث شرف ہے پیری رئیس. میں اپنا وعدہ نہیں بھولوں گا فرحت آغا. شہزادے کے لیے جس دن کا انتظار تھا وہ دن قریب آ رہا ہے. ینیچر کی ان کے لیے حمایت سب کو معلوم ہے. ترگت رئیس بھی خلید کی جانب سے آ رہے ہیں. چہار سندھ سے حملہ کیا جائے گا غافلوں پر. شہزادے کی تخت نشینی کے لیے ہمیں ساتھ دینا ہوگا. انشاءاللہ آقا، ہم اس دن کے منتظر ہیں. ان قریب فرحت آغا، ان قریب. محل والوں سے سننے میں آیا ہے کہ شہزادے مصطفیٰ کو پایا تخت آنے کے لیے خبر بھیج دی گئی ہے. شہزادے ان قریب ہماری نظروں کے سامنے ہوں گے. پانی پانی. شکر ہے خدا کا. شہزادے مصطفیٰ کی دوست ان تمام حالات سے قطعاً بے خبر نہیں ہے.